موسٹ امپورٹنٹ وار کے اوپر بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. ویری گڈ مارننگ, وعلیکم السلام. تھینک یو جی فار بینگ پارٹ آف رائز اینڈ شائن. آپ نے ہمیں وقت دیا اور وقت بڑا نازک ہے اور اسٹیٹمنٹ سے شروع کریں گے ٹرمپ کی کہ مجھے ایران کا تیل چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, وہ وینزویلا کا تیل لے لیا انہوں نے اور اس کے بعد ایران کا بھی تیل لیکن اس کے ملٹیپل پرپز ہوتے ہیں. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے. باقی جو ان کی وار اسٹریٹجی ہے, خیر وہ تو جس طرح بنی اس میں اسرائیل کا بھی کافی ہاتھ ہے. آپ بھی اپنے انٹرو میں ذکر کر رہے تھے. لیکن اگر ہم اسرائیل کی جنگ اس کو کہیں اور امریکہ کی کہیں تو یہ ایک اکابرین جو اسرائیل کے ہیں اور امریکہ کے ہیں وہ آپس میں کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل, کیونکہ امریکہ اسرائیل کے انٹرسٹ دیکھتا ہے. اسرائیل کی لابی جو ہے وہ ہر لحاظ سے انفلوئنشل ہے امریکہ میں, چاہے وہ کانگریس ہو, پینٹاگون ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ان کا کلیدی ڈپارٹمنٹ ہو. تو اسرائیلی لابی, اور اس پہ کافی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک مشہور کتاب ہے جان میرشائمر کی, جو کہ پروفیسر ہے شکاگو یونیورسٹی میں اور بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفاد میں اپنے مفاد بھول جاتا ہے, خاص طور پہ فارن پالیسی کے لحاظ سے. تو یہ تو ہو گیا. لیکن جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس میں جس طرح آپ بات کریں آئل کی, کہ آئل تو ٹھیک ہے, ایک اٹریکشن ہے, کیونکہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ دولت, اور دولت کس ملک کو پسند نہیں ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ ملک امریکہ جیسا ہو جس کی دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بجٹ ہے عسکری قوت کو مینٹین رکھنے کے لیے. $1.6 ٹریلین ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھا دیا, 600 کچھ بلین سے زیادہ ڈالر. پہلے 900 بلین ڈالر کا بجٹ تھا. تو ظاہر ہے ان کی عسکری قوت ہے. لیکن ایرانین نے اپنے جو ریزالو ہے, اپنی کریج ہے, اس کریج کو دکھلا کے اپنے میزائلوں کے ساتھ جو کریج داغا ہے اپنا اور برداشت کیا ہے اتنے سارے جو ان پر اٹیک ہو رہے ہیں, اور گزشتہ شب بھی اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر جس میں کہ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے جواب میں ایران بھی ترکی بترکی جواب دے رہا ہے. اور وہ زوم جو کہ امریکہ کو تھا, وہ زوم جو کہ اسرائیل کو تھا کہ ان کی آئرن ڈوم کو, ان کے تھرڈ پروٹیکشن کو جو ایئر ڈیفنس پروٹیکشن ہے, یا ان کے پیٹریاٹ کو کوئی بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا دنیا کا میزائل. لیکن یہ تو سارے پینیٹریٹ کر کے حیفا میں آگ لگی ہوئی ہے ان کے ریفائنری میں. کل اس پر حملہ ہوا تھا. اسرائیل میں لوگ بنکرز میں رہ کے دن میں 23 مرتبہ سائرن بجتا ہے. زندگی اجیرن ہو گئی ہے. دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں, لیکن اور تو اور اسرائیل میں جلوس نکل رہے ہیں جس پہ کہ بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا میں نے ان چیزوں کا احاطہ اس لیے کیا ہے کہ چیزیں جس طرح سمپل نظر آتی ہیں اتنی نہیں ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے مضمرات ہوتے ہیں. جنگ کے مضمرات تو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب اس کا جو جیو پولیٹیکل اس کا جو اثر ہے, آج دیکھیں کہ فارن منسٹر ہمارے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار چائنا جا رہے ہیں. بالکل, اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ اس کا اور ہنگامی اس کا جو ہے دورہ, اس کے بھی کیا, اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوائنٹس ہوں گے جو ڈسکس ہوں گے, کیا ضرورت پیش آئی, اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی, پہلے تو میں یہ اسٹیٹمنٹ کو اسی سے کنیکٹ کرنے لگا تھا. اور میں اس چیز کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کے جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بتائی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں کیا کہا ہے. انہوں نے تھریٹ کیا ہے, اور ساتھ میں جو وال اسٹریٹ جرنل آج رپورٹ کر رہا ہے اپنے شمارے میں, وہ بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارمز نہ بھی کھلا تو ہم جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. اور جنگ کی وکٹری تو انہوں نے پہلے سے اندیا دے دیا ہے کہ انہوں نے ایرانی ایئر فورس کو ختم کر دیا, نیوی کو ختم کر دیا, ان کے لیڈران کو ختم کر دیا. اور وہ انہوں نے کل اور پرسوں اور 2 دن پہلے ریجیم چینج کو کلیم کر لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریجیم چینج ہو گئی. تو وہ اپنا ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں اپنی قوم کو, امریکن قوم کو بتانے کے لیے کہ فتح ان کی تقریباً ہو گئی ہے. لیکن در حقیقت اس دلدل میں جس طرح دھنستے جا رہے ہیں اس طرح امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. 90 لاکھ افراد 330 مختلف ایونٹس میں اور مقامات پر نکلے ہیں پرسوں, اور انہوں نے نو کنگ کا نعرہ لگایا ہے, جنگ کے خلاف نعرہ لگایا ہے. تو ایک پریشر تو ہوتا ہے, اور جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے
कांग्रेस पर्सन्स की, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन कांग्रेस पर्सन्स पर भी तो आखिर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके अपने अवाम का। और फिर महंगाई जब जेबों पर बोझ बने लोगों के, और जो लोग वहां हैंड टू माउथ रहते हैं, जिसको चेक टू चेक, पे चेक कहते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल बिलबिला उठे हैं। तो इसलिए ये इस जंग को शुरू करने से पहले वाज़ेह रहे, आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि नेतन्याहू ने अपनी इजरायली लॉबी को साथ मिला के, जो कि हमेशा करते हैं वो लोग, और उसके साथ 7 मरतबा अमेरिका का व्हाइट हाउस का चक्कर लगाया था पिछले 11 महीनों में। और उन 7 मरतबा में यही कोशिश थी। आखिरी मरतबा जब नेतन्याहू 11 फरवरी को गए हैं, बैकडोर रास्ते से गए हैं, और आपको याद होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग थी, उसमें नहीं तशरीफ लाए। उसका मकसद यही था कि जंग की तैयारी, और वहीं से ये वार प्लान बना जिस तरह के जो जेडी वैंस ने गिला किया नेतन्याहू से कोई 2 दिन कबल, और वो लीक होके बात मीडिया में पहुंच गई है। तो इसका जो लुबे लुबाब है वो क्या है? आपने पूछा चाइना, ये इसी चीज की कड़ी है कि जो गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तान जिसमें मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि वो मीडिएट कर रहा है। और वाज़ेह रहे, ये पहली मर्तबा नहीं, पाकिस्तान ने 1971 में भी चीन और अमेरिका का मिलाप कराया, जब पहली मर्तबा अमेरिका ने चीन को तस्लीम किया। और उस वक्त से 71 के बाद चीन जो है वो एक परमानेंट मेंबर के तौर पर, यानी कि वीटो मेंबर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्ट हुआ। पहले ताइवान था। तो ये पाकिस्तान की काविश थी जिस तरह, और अब भी पाकिस्तान की काविश है। और चाइना का ये दौरा उस सिलसिले की यूं कड़ी है कि ईरान वो मांगता है गारंटी। पाकिस्तान तो चले अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के साथ और बाकी जो ममालिक आपने कल देखे, जिसमें सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, तो उनके साथ मिलके अगर चाइना उस गारंटी में शामिल हो जाता है तो वो कभी होगी, मजबूत होगी। और चाइना ने ये कह दिया, और ये तबसरा निगार बात कर रहे हैं कि चाइना बीच में पड़ता है तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी इसमें पास हो जाएगा। इसका मतलब रशिया भी बीच में आ जाएगा, और फिर वो गारंटी ऐसी होगी जो देर पा हो सकती है, क्योंकि ईरान को यही खदशा और खतरा रहता है कि हर मर्तबा हम डायलॉग शुरू करते हैं, 2 दिन पहले हमला कर देते हैं, 3 दिन पहले पर हमला कर देते हैं अमेरिकन और इजरायली। तो कभी हम इस दफा तो हम ठीक है, हम इस पे जंग लड़ेंगे अपनी। हालांकि देखें कितना नुकसान हो रहा है ईरानियों का, तकरीबन कोई 98,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मनदम हो गई हैं, उनके तनसीबात को नुकसान पहुंच रहा है, उनके टैंकर्स को और उनके ऑयल डिपोस को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बावजूद वो जो है करज के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बरक्स आप देखें कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी परसों जो दागे गए हैं मिसाइल, जहां उनके रिफ्यूलिंग जहाज, दुनिया में टोटल 23 रिफ्यूलिंग जहाज हैं, जिसमें से 6 रिपोर्ट लीक हुई है, 6 बर्बाद हो गए जो सऊदी बेस पर अमेरिका के मौजूद थे। उसी तरह वहां कोई 14 के करीब सोल्जर्स का जो बातें सामने आ रही हैं, वो तकरीबन हलाक हुए। और साथ में ज़ाहिर है अमेरिका तो अभी उसने तस्लीम नहीं किया, साथ में को 200-250 जो उनके अमेरिकन हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, अपना लॉस तो वो बताते नहीं ना जमील साहब, वो तो बताते नहीं कि जी यूएस में कितनी जाने गई, कितना नुकसान हुआ, इजराइल का कितना नुकसान है, वो नहीं बताते हैं। वहाँ ब्लैकआउट किया हुआ है दुनिया के लिए, लेकिन ईरान में कितना नुकसान हो रहा है वो ज़रूर बताते हैं। अच्छा, आपसे ये ज़रा बताएं कि हम तो यही समझते रहे कि अमेरिका का लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा इंसाफ होता है वहाँ, और इतना कुछ हो जाए, और ये शख्स अभी तक इसकी गवर्नमेंट चल रही है, ये मौजूद है, कितना वक्त लगेगा इसकी हुकूमत को गिराने के लिए? उसके अगेंस्ट ट्रायल्स हों, वॉर क्रिमिनल तो अब ये भी हो गए हैं, तो वो क्यों नहीं हो रहा ऐसे सिस्टम में जिस पर बड़ा ट्रस्ट करते थे? या वो सिस्टम तो अब भी कायम है, लेकिन प्रेसिडेंशियल पावर्स इतनी ज्यादा हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स अमेरिका की कानून इसमें दस्तूर में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंशियल पावर के तहत, जैसे कि ये जंग, इस जंग में प्रेसिडेंशियल पावर के तहत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनको ये इख्तियार है कि वो 60 से 90 दिन तक बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के ये जंग जारी रख सकते हैं। तो आधा टाइम तो गुजर गया उसमें से, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है।
तो वो उसको उन्होंने, लेकिन इस दफा जितने इन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, और जिसकी वजह से यकीनन एक बेचैनी सी तो है। और ये फैसला जो किया है, पहले भी जो सदूर हैं उन्होंने फैसले किए, उसमें उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने हवारियों से, नेटो से कंसल्ट किया था, बाकी अपने कांग्रेस से कंसल्ट किया था, जो कांग्रेसमैन उनकी अपनी पार्टी के थे। इस मर्तबा तो किसी से भी मशवरा नहीं किया गया। नेटो मेंबर्स नाराज बैठे हुए हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुकार रहे हैं कि आओ हमारा साथ दो, और बार बार वो कह रहे हैं कि ना हमसे आपने पूछा, ना हम इसमें साथ देना चाहते हैं। उनको पता है कि इसके मज़मरात क्या है। अगर वो साथ देते हैं तो ईरान ने कह दिया है कि जो मुल्क भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा जो हम पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि इजराइल और अमेरिका, तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। तो कोई नहीं चाहता है कि जब उनसे मशवरा ही नहीं किया गया तो वो क्यों निशाना बने। कल की बात कर लें, यूके के मिस्टर स्टामर जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा अड्डा जो है वो हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, हम सिर्फ दफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि और उस पर क्या कहा कि इट्स वेरी शेमफुल, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फॉर द नेटो कंट्रीज के, उनमें से कोई भी नहीं आया बीच में। तो एक तलमलाहट तो है, एक फ्रस्ट्रेशन तो है। और मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना तजिया ये है कि डार साहब जो जा रही हैं आज, और अगली बैठक जो अगले हफ्ते होनी है, जिसका कि इंदिया दे दिया गया है, इशारा दे दिया गया है, उस बैठक में ऐन मुमकिन है कि वो के दुश्वार, लेकिन कोशिश यही हो रही है चाइना के बाद, ऐन मुमकिन है कि ईरान की नुमाइंदगी शामिल हो जाए और इस जंग को मद्धम करने में इस मीटिंग के बाद। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी 15 अप्रैल को जा रहे हैं चाइना में, उससे पहले वो भी चाहते हैं कि उनको कोई तोहफा मिले और वो अमन के तौर पर अनाउंस करके आ सकें कि जी हमने अमन करा दिया। और इसीलिए आपके वो मुतजाद बयानात जो आपको डोनाल्ड ट्रंप के नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए नजर आ रहे हैं मुतजाद बयान, कि वो क्लेम अपनी फतह भी कर रहे हैं, रिजीम चेंज का भी क्लेम कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं भी खुला, वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि अगर नहीं भी खुला तब भी हम आ सकते हैं, वो बाद में खुल जाएगा। और उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ईरान के साथ, और ईरान के मफादात को भी पाकिस्तान देख रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से तकलीफ बढ़ रही है अमेरिका में, उतनी तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप को भी और उनकी टीम को भी हो रही है। सिर्फ 7% अफराद, यानी 7% पीपल ओनली, दे आर इन फेवर ऑफ द वॉर, रेस्ट ऑफ देम और नॉट इन द फेवर ऑफ द वॉर। ये जो उन्होंने सर्वे किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप देखेंगी, आखिरी बात मैं करता चलूं, शायद आपका टाइम भी खत्म होने वाला है, कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम है इस खत्ते का, आगे चल के वो कैलकुलस तब्दील होने लगा है। और उस कैलकुलस में अब जो तकिया करते थे हमारे खलीजी ममालिक के, जो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी अमेरिका की तरफ से, अब वो बबाले जान उनके लिए बन गया है। और उनमें बड़ी एक राय पाई जा रही है कि भाई इनसे किस तरह जान छुड़ाई जाए। तो आगे जाके मंजरनामे में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप यू स्पीक सो वेल, इतना कुछ सीखने को मिलता है।